Yes, my colleague Rupesh, he's been toiling hard on the ground, going and meeting people, the right kind of stakeholders. He's filed in a ground report on this startling revelation that students with the Solver gang mafias were inside a hotel room. This is a guest house room, beg your pardon, an NHAI government guest house. A minister could possibly have colluded on this front, where children sat down all night long trying to memorize a Solver gang question paper. Take a look at this report. We've got expert panelists. We've got a NEET aspirant. My colleague from the education desk also joins me here on the desk, live here in the studio. We're going to talk about it all. First and foremost, the ground report that's coming your way. तो NHAI के जो गेस्ट हाउस है उसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और यहाँ देखिए ये 4 मई यानी कि 4 और 5 मई के दरमियानी रात यहाँ कौन कौन रुका था इस गेस्ट हाउस में। ये है अनुराग यादव। ये अनुराग यादव का ये मोबाइल नंबर है 9693464488, 12:40 PM, यानी कि 4 मई की 12:40 रात में ये यहाँ पर एंट्री इसका किया गया है। और ये सब कुछ यहाँ पर अनुराग यादव का साइन किया हुआ है। 440 टोकन नंबर 440। रुकिए एक मिनट, क्या बात है बताइए। और कौन है यहाँ पर? अनुराग यादव के साथ यहाँ सीना, संजीव जी। बिना इंचार्ज के पूछ हम नहीं बता सकते कुछ भी। आप हमको दिखा नहीं सकते हैं कौन यहाँ पे रुके थे? 4 और 5 मई को कितने लोग रुके थे यहाँ? मैं नहीं था सर यहाँ। आप कौन है यहाँ पर? अनुराग यादव की बुकिंग किसने की थी? आप क्या हैं, गार्ड हैं यहाँ? नहीं, हाँ, हम बेहतर हैं। बेहतर है। अच्छा, ये जो 440 टोकन नंबर अनुराग यादव जो लिखा हुआ है, इसके पास गए थे आप वेटर? हम लोग को तो उतना आइडिया नहीं है सर, हम लोग तो चिंते नहीं नाम से किसी को, बस हम लोग सर्विस करते हैं, हम लोग बेहतर हैं, सिर्फ सर्विस करते हैं। तो आप हैं यहाँ के इंचार्ज? हाँ, क्या नाम है आपका? हेलो सर, ये मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे घुस के बिना देख रहे हैं मीडिया से। मीडिया वाले आए हुए हैं, ऐसे आके रजिस्टर देख रहे हैं। ये मैं उधर खाना खा रहा था, आके घुस के यहाँ बैठाया था, घुस के खा रहे हैं, यही कर रहे हैं। जो रजिस्टर था वो देख रहे हैं। पता आके ऐसे घुस के रंजन यहीं बैठा हुआ तो नीचे ऐसे देख रहे हैं लोग। अभी मैं अंदर से आया। मेरी बात कराइए। मेरी बात कराइए उनसे। कौन है? लीजिए, बात करने के लिए बोले, बात कीजिए ना। हेलो, कौन बोल रहे हैं सर? अच्छा, तो हमको कुछ जानकारी चाहिए कि 4 मई को कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे। कुछ नाम है मेरे पास, उस नाम में से कौन कौन लोग यहाँ रुके हुए थे। नहीं, तो हम तो इनसे पूछे कि ज़रा दिखाइए। तो अब तो ये ले लिए हमारे हाथ से रजिस्टर, तो ज़रा हमको देखना था उसमें कौन कौन लोग रुके हुए हैं। नहीं तो आप मीडिया को नहीं दिखा सकते हैं? अच्छा, ये बात है। नहीं, ये तो सामान्य है, गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस है। यहाँ कौन कौन ठहरा था वो तो मतलब हम जान ही सकते हैं ना आपसे। किनसे बात करनी होगी सर? किनसे बात करनी होगी? ऊपर? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। That's the big expose, ladies and gentlemen, and we're going to quickly connect with Rupesh as well. But before that, let's quickly tell you about the Bihar Economic Offences Unit's probe itself. Where has that reached? Because Bihar, it seems, is the guiding light in terms of the investigation into this paper leak allegation. Now, 2 officials from the Bihar Economic Offences Unit have they are in fact in the national capital and are trying to obtain the original question paper from the NTA. This after the NTA did not provide the original question paper to the department despite 3 reminders in the past. The Bihar police have also discovered burnt question papers and arrested 13 individuals. This includes relatives of some aspirants and brokers as well. The agency recovered 6 post-dated checks, mind you, 6 post-dated checks suspected to have been issued to the mafia, and found evidence of a demand for over 30 lakh rupees from each candidate for the leaked NEET question paper. Not just this, the Gujarat police has also arrested 5 people on cheating allegations in Godhra. We're going to talk about what the SC said and what politics is ensuing as well. But let me quickly introduce you with our esteemed panelists. Joining me on the broadcast, ladies and gentlemen, is of course Kapil Gupta, CEO, NEETprep.com. Many thanks for joining with us on the broadcast here, sir. Anshika Ranjan, a NEET
NEET aspirant of this time around. Anshika, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. Also joining me in the studio is my colleague Arnab Mitra, joins us from the education desk. We're going to need your insightful inputs. But also on the phone line is with us is Rupesh from Patna. Let's first quickly cut across to Rupesh. Rupesh, what a big expose. इससे बड़ा expose इस समय नहीं हो सकता. वेटर से आपकी बातचीत हो रही थी, कह रहे थे मैं तो सिर्फ सर्व करता हूं, मुझे नहीं पता कौन किस कमरे में रहता है. देश की खिदमत में इससे बढ़िया सर्विस और क्या हो सकती है, आप बताइए. गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में कल्यूजन ऑफ अ मिनिस्टर इज ऑल्सो बीइंग लुक्ड अपाउट. आप क्या कुछ बता सकते हैं इस समय? जी हाँ, बिल्कुल. देखिए, अब तक ये बातें सामने आ रही थी कि सॉल्वर गैंग ने, शिक्षा माफियाओं ने यहाँ पर किस तरीके से कमरे किराए पर लिए, किस तरीके से एक प्ले स्कूल को अपना अड्डा बनाया. लेकिन अब जब हमने खुलासा किया है, उसमें तंत्र का खुलासा है, उसमें सिस्टम का खुलासा है, उसमें पूरा ये जो तंत्र है वो बेपर्द हो रहा है कि किस तरीके से जो सॉल्वर गैंग है, जो माफिया है, उनकी पहुंच कहां कहां तक है. NHI के गेस्ट हाउस को कैसे बुक करा लिया जाता है, किस तरीके से वहां पूरी रात छात्र ठहरते हैं, उन्हें प्रश्न पत्र दिया जाता है, और ये सब कुछ सरकारी व्यवस्था में. और इसलिए सवाल ये है कि क्या ये सरकारी व्यवस्था का उपयोग है या फिर सरकारी व्यवस्था का संरक्षण इन्हें प्राप्त है. किस हालत में, किन हालात में जो सिकंदर नाम का जो इस पूरे गैंग का जो किंगपिन है, उसने EOU को अपने बयान में, ये स्वीकारोक्ति बयान में उसने ये स्वीकार किया, इकबालिया बयान है कि उसने NHI का गेस्ट रूम बुक कराया था. तो किन परिस्थितियों में NHI का गेस्ट रूम इस माफियाओं को मिल गया, किस तरीके से वहां छात्र पूरी रात वहां ठहरे रहे और वहीं पर उनको प्रश्न पत्र दिया गया और आंसर भी दिए गए, आंसर रटवाया गया. और जो मोडस ऑपरेंडी है, अगर उसको आप देखें तो अलग अलग लोग हैं. सिकंदर है, अमित आनंद है, नीतीश है, और हर गैंग के सदस्य को 5-5, 6-6 लड़कों की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप पटना में पहुंचे और पटना में पहुंचने के बाद किसको कहाँ रखना है, किस तरीके से उनको प्रश्न पत्र देना है, आंसर देना है. वो पूरी रात आंसर रटेंगे और फिर उनको अपनी गाड़ी से अपने संरक्षण में, अपनी व्यवस्था में, या यूं कहें कि अपनी निगरानी में, क्योंकि इस गैंग को ये आशंका होती है कि किसी छात्र को अगर क्वेश्चन और आंसर दिया जाए तो अपने तरीके से उसको लिख न कर दे दूसरे के पास, जिससे उसको पैसे नहीं मिले हैं उन तक वो प्रश्न पत्र ना पहुंच जाए. लिहाजा उन छात्रों की निगरानी की जाती है, अपनी निगरानी में सब तमाम आंसर रटवाए जाते हैं और फिर अपनी गाड़ी से उन्हें परीक्षा केंद्र तक छोड़ दिया जाता है. ये तमाम चीजें पटना में, ये राजधानी है, यहाँ पूरी व्यवस्था है, सरकार, हाकिम, हुकाम सब यहाँ बैठते हैं. और वहाँ के NHI के गेस्ट हाउस, जो कि अगर आप देखेंगे तो उसके ठीक पीछे मुख्यमंत्री आवास है, सामने एयरपोर्ट है, और उस इलाके में सॉल्वर गैंग का एक सदस्य NHI के गेस्ट रूम का कमरा बुक करता है. गवर्नमेंट प्रेमिसेस पे ऐसा कुछ हो जाना, NHI के गेस्ट हाउस में ऐसा कुछ हो जाना. और देखिए ऑप्टिक्स देखिए रुपेश जी, अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने बोला कि आने वाली असेंबली सेशन में एक बहुत ही कठोर कानून लाया जाएगा पेपर लीक के ऊपर. जी हाँ, बिल्कुल. नीतीश कुमार ने जो बैठक की उसमें अपने तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि बिहार में कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हो रही है जिसमें पेपर लीक या कोई धांधली, पेपर उसके बाद से उसमें कदाचार हो जाना, नकल हो जाना, फिर हाई कोर्ट में मामला लटक जाना, परीक्षा का रद्द होना, पुनः परीक्षा होना, रिजल्ट का रद्द हो जाना. इस प्रक्रिया से गुजरे बगैर कोई भी एक परीक्षा संपन्न नहीं हो रही है. और अगर आगे ये दिखलाना है 2025 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में जो विपक्ष भी कहता है कि हम नौकरी की गारंटी, मतलब तेजस्वी यादव, इसको अगर काउंटर करना है तो नौकरियां देनी होंगी. और नौकरियां देने के क्रम में अगर इस तरह से सॉल्वर गैंग और शिक्षा माफिया हावी रहेंगे तो बिहार की ओर बदनामी होगी. लिहाजा मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आगामी विधानसभा सत्र में एक कानून लाया जाएगा, एक प्रस्ताव लाया जाएगा जिस पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे. लेकिन कानून बनाने से पहले इसकी पहचान करनी जरूरी है कि सरकार में, तंत्र में, सिस्टम में वो कौन सा गुण है जो लगा हुआ है. उसकी बहुत जाहिर और बहुत साफ सवाल है. इससे आपको छोड़ देने से पहले एक आखिरी सवाल. आपके ग्राउंड रिपोर्ट में देखा कि फोन पर बातचीत हो रही थी, वार्तालाप हो रही थी. किससे बातचीत हो रही थी और उनके क्या जवाब थे आपके सवालों के? देखिए, ये पता चला कि NHI के गेस्ट हाउस में लड़कों को ठहराया गया था. लिहाजा हम पहुंच गए NHI के गेस्ट हाउस में. वहां पर 2 व्यक्ति थे. एक तो रजिस्टर हमने अपने आप से देख लिया कि उस रजिस्टर में अनुराग यादव जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की गिरफ्त में है. और ये खुलासा हुआ कि अनुराग यादव NHI के गेस्ट में अपने कुछ अन्य परीक्षार्थियों के साथ उसको ठहराया गया था. लिहाजा जो वहां के अटेंडेंट है उसने रजिस्टर मेरे हाथ से छीन लिया. दूसरा एक वेटर था, उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन अपने बॉस को, यानी कि जो PWD के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जिनके सीधे नियंत्रण में NHI का वो गेस्ट हाउस होता है, उससे उसने पहले बातचीत की.
मेरे कहने पर कि मेरी भी उनसे बातचीत की, उन्होंने मुझसे भी बात की, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आपको मंत्रालय से करनी होगी और आप अगर लिखित आदेश लेकर आते हैं उसके बाद ही हम आपको रजिस्टर दिखलाएंगे। लेकिन तब तक हम रजिस्टर देख चुके थे। जब 4 मई को कमरा नंबर, किस कमरे नंबर में, किस टोकन नंबर में, किस लेटर नंबर की पैरवी से अनुराग यादव ठहरा हुआ था, तब तक हमारे हाथ वो दस्तावेज लग चुका था। लेकिन एनएचएआई का ये जो गेस्ट हाउस है, ये पीडब्ल्यूडी के नियंत्रण में है और पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके आदेश पर ही वहां कमरा बुक होता है। तो तमाम तरह के सवाल हैं कि आखिर सिकंदर की पहुंच एनएचएआई और गेस्ट हाउस क्या एग्जीक्यूटिव तक या और ऊपर तक, यानी कि सरकारी तंत्र में उसकी पहुंच कहां तक है, ये जांच का विषय है और ये पुलिस और सरकार इसकी जांच जरूर कराए। एब्सोल्युटली। रुपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।